Hello Aishwarya. So today we are going to discuss something about formula. Suppose the basic formula in 10th class you have studied that sin square x plus cos square x equal to 1, right? So from this you can hunt what is sin square x. It is 1 minus cos square x, or you can say that from here you can get cos square x. So what is cos square x? So cos square x is 1 minus sin square x. Is it clear? So this is formula number 1. Next formula, it is sec square x minus tan square x equal to 1. So what is sec square x? You are going to get 1 plus tan square x. Sec square x is 1 plus tan square x. Or if you take tan square x, the tan square x you are going to get is, what you will get tan square x? That is, sec square x minus 1. Is it clear? So this is regarding 2. And regarding third, it is, that it is cosec square x minus cot square x equal to 1. So what will be cosec square x? That is 1 plus cot square x. And what is cot square x? Is cosec square x minus 1. So these are the basic formulas you should know and you should be well aware of it. And next formula is, that sin x is the reciprocal of cosec x. Okay, so sin x is 1 by cosec x, or if you say cosec x, it is 1 by sin x. Is it clear? Similarly, you can talk about cos x. So cos x is 1 by sec x, or if you talk about sec x, it is 1 by cos x. Is it clear? Next is tan x. So tan x you can say 1 by cot x. Okay, cot x you can say it is 1 by tan x. Is it clear? You have one more formula of tan x. What is that? Tan x is sin x by cos x. Okay, and you have one more formula, cot x is cos x by sin x. So these are the basic formulas, right? And this you should keep in the mind, and apart from that you should know about in which quadrant which function is positive. So this graph, this is very important, you might be knowing this. So in first quadrant all the trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine is positive and its reciprocal cosec is positive, rest are negative. तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन के लिए है बच्चों. थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए बच्चों cos पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पार्टनर sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. याद रखेंगे. चलिए मैं यहाँ पे आपको आपके हेल्प के लिए रेंज भी लिख देता हूँ. सो दिस इज 0. ओके, दिस you can take it as pi by 2. Okay, and this is pi, and this you can take it as 3 pi by 2, and this you can take it as 2 pi. Clear? So 0 to pi means first quadrant, pi by 2 to pi means second quadrant, pi to 3 pi by 2 means third quadrant, 3 pi by 2 to 2 pi means fourth quadrant. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है. ऐसे करके याद रखिए. इसका याद करने का और एक शॉर्ट तरीका है बच्चों, ऑल. आप इसको बोल दो ए, ऑल यानी सब पॉजिटिव है. सिल्वर साइन पॉजिटिव है और उसका एसोसिएट कोसेक, ऑल सिल्वर. टी कप, टी यानी tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. कप
यानी कॉस पॉजिटिव है। तो ऑल सिल्वर टी कप भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं आपको देख के बताता हूँ कैसे करना है, आप देख के समझ जाओगी। तो सबसे पहले आपको cos x दिया हुआ है -3/5, ठीक है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल, हार्ड नहीं है, देख के समझ जाओगे। तो cos x दिया है -3/5, तो उससे आप बराबर सेक निकाल लोगे, रेसिप्रोकल है बस, दैट इज -5/3, सिंपल। चलिए cos से सेक निकल गया, विच इज रेसिप्रोकल। नाउ यू नो वन फॉर्मूला, sin square x plus cos square x equal to 1. Okay, so using this formula, if you put cos x, you will get sin x. तो sin square x is 1 minus cos square x, मैंने cos को RHS में ला दिया, cos का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, cos was -3/5। अब अगर -3/5 को स्क्वायर करोगे, you will end up at 9/25, so this is 16/25। तो sin x is square root of 16/25 plus or minus 4/5. Okay, now you have two values, plus or minus. Now what you will do? Okay, now you see we are discussing, we are taking a case of third quadrant as per the question. देखिए यहाँ पे लिखा है third quadrant, and in third quadrant you know sign is negative, am I right? आ जाते हैं, देखिए third quadrant में आपका जो sign है that is negative. So that means here out of positive negative you have to take negative. So this is negative. Clear? तो फ्रॉम साइन यू आर गेटिंग कोसेक, रेसिप्रोकल है बस, साइन इज -4/5, कोसेक इज -5/4। ओके, सो यू गॉट कॉस साइन यू गॉट कॉस सेक एंड कॉस से सेक मिल गया आपको बच्चों, साइन से कोसेक मिल गया। tan निकालना है, tan इज वेरी सिंपल, tan का फॉर्मूला क्या है, tan इज साइन बाय कॉस, यू नो साइन, यू नो कॉस। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस, यू विल गेट 4/3। साइन इज वॉट, साइन इज 4/5, 4/5, नीचे कॉस क्या है 3/5, माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल करोगे, यू विल गेट द आंसर 4/3। tan का रेसिप्रोकल है cot, ओके, तो यू विल गेट cot इक्वल टू 3/4, एम राइट। तो यही है बच्चों, बड़ा सिंपल है। और एक डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 7। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको cot दिया है, cot इज -5/12, करेक्ट, वेयर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, सो cot यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, cot से tan निकल जाएगा बच्चों, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल पार्टनर। देखिए cot दिया है tan निकल जाता है, sin दिया है कोसेक निकल जाता है, cos दिया है sec निकल जाता है, ये सब रेसिप्रोकल्स है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए आप tan के मदद से sec निकाल सकते हो, बिकॉज sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, sec आ जाएगा, ठीक है। फिर sec के मदद से cos आ जाएगा बच्चों, क्योंकि रेसिप्रोकल है, करेक्ट। देखिए sec यहाँ दिया है, sec से आप तुरंत फटाक से क्या निकाल सकते हो, cos निकाल सकते हो। cos इज जस्ट -5/13, ये 13/5 था, 5/13, प्लस और माइनस दिया है बच्चों, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो sec है वो नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव लोगे, -13/5, सिंपल। तो sec से cos आ गया। आप cos से sin निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो sin स्क्वायर एक्स इज 1 - cos स्क्वायर एक्स, sin निकाल लीजिए, फिर sin को रेसिप्रोकल करिए, कोसेक निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे sin निकालने का तरीका अलग लगाया है, tan इंटू cos लगाया है, बिकॉज sin बाई cos, cos कैंसिल, sin आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वो वाला आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ बच्चों आपको ये सम मुझे होमवर्क करके सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, कॉस दिया है, राइट, कॉस से आप साइन निकाल लोगे, कॉस से आप सेक भी निकाल लोगे, है ना, रेसिप्रोकल है। साइन पता चल गया, कोसेक निकल जाएगा, रेसिप्रोकल है। फिर आपको tan निकल जाएगा, tan इज साइन बाय कॉस, बिकॉज वंस यू नो साइन एंड कॉस यू कैन ईजिली हंट ए tan। तो कॉस साइन कॉट, कॉट से बच्चों क्या निकल जाएगा बताइए, कॉट से क्या क्या निकाल सकते हो, टेल मी द ट्रैक। सो इफ कॉट इज गिवन स्ट्रेट यू कैन फाइंड tan, करेक्ट, tan x निकल जाएगा ना। उसके बाद tan से तुरंत अब निकाल सकते हो sec x, बिकॉज sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। sec से तुरंत अब क्या निकाल लोगे, cos, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर?
कॉस से आप फटाक से क्या निकाल सकते हो, साइन, यू नो यू कैन ईजिली हंट साइन। साइन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके साइन निकाल सकते हो। फिर साइन आ गया, मैं ऐसे करके एरो दे देता हूँ ताकि आप लोगों को सोचने में आसानी हो, ठीक है। अभी साइन से आप क्या निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी, साइन से आप निकाल सकते हो कोसेक बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर? आप साइन को और एक फॉर्म में लगा सकते हो, देखिए आप लिख सकते हो tan x इंटू कॉस एक्स, बिकॉज tan इज साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कैंसिल तो आपको साइन मिलता है। ये एक शॉर्टकट है बच्चों, इसमें क्या है, यू नो tan ऑल्सो प्रीवियसली, ओके, एंड यू नो cos also. So if you multiply this both, you will directly get the answer rather than doing the square of cos and then subtracting from 1. Correct? चलिए ये तो हो गया आपका cot का रूट, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रूट। ओके, कहाँ से कहाँ जाने का रूट, आपको cot से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक जाने का रूट, तो आप इसको बोलेंगे फ्रॉम cot you are going to other trigonometric functions. Is it clear? तो similarly how you will track the root from sec? Tell me, बताइए, मैं छोटा छोटा सा लिखता हूँ। तो पहले sec से आप तुरंत पहुँच जाओगे cos because they are reciprocal of each other. Clear है? आप sec से पहुँच जाओगे tan because sec and tan are related. ठीक है बच्चों, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किस किस को, tan और कॉस को, आप पहुंच जाओगे यू नो साइन, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। साइन से आप पहुंच जाओगे कोसेक, ठीक है बच्चों। और आपको ये जो टैन मिला था, टैन को रेसिप्रोकल करोगे तो आप आ जाओगे कॉट। 1 2 3 4 सब आ गया, देखिए सिंपल से। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन निकाल सकते हो, और एक तरीका है, द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस से भी आप इधर आ सकते हो, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली आ जाओगे आप। सो दीज आर द वेज टू डील विद द सम। tan से कैसे करोगे बताइए, नाउ टेल मी हाउ यू विल डू विद tan। सो बोलिए, tan से पहले कहाँ जाएंगे, tan से आप सीधा जाओगे cot रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, करेक्ट। फिर आप tan से जा सकते हो sec, याद रखिए tan और sec का ब्रिज है। sec से आप जा सकते हो cos, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सही है ना। फिर आप ये tan और cos को मल्टीप्लाई करके जा सकते हो sin, फिर sin से आप आगे बढ़ सकते हो cosec x, तो यू गॉट द आंसर 1 2 3 4 5 6। बस sin का ध्यान देना, and you know in which quadrant which trigonometric function is positive. All is positive, sine is positive, tan is positive, cos is positive, all silver teacup. Is it clear? चलिए बच्चों, ये हो गया। तो अभी आप मुझे ये सारा होमवर्क करके सेंड कर दीजिए, दिस ऑल क्वेश्चंस, ओके। और कोई डाउट है तो काइंडली कॉल मी टू डिस्कस, राइट।